Assalamu alaikum dear students. Today we will study about the nucleus, its structure and function in detail. As you all know that nucleus is one of the most important cell organelle which is found in eukaryotes. It is one of the most important and prominent part of a cell. In case of animal cell, it is found in the center of the cell with exception of muscle fiber cells, because in muscle fibers it can be present on different locations. It can be at the periphery of a cell, it can be scattered. Therefore, these are the exceptions. The muscle fiber cells, these are the exceptions. Otherwise, the nucleus, it is present in the center of a cell, animal cell. While in case of adult plant cell, nucleus is slightly away from the center. Here in this diagram, you can see it clearly that the nucleus is slightly pushed towards the periphery. It is not in the center of the cell. Why is it so? इसकी वजह क्या है? क्यों इस तरह से है? It is because of the presence of the large central vacuole in case of plant cell. Eukaryotic nucleus जो है further, it is composed of these four main parts, namely nuclear envelope or the nuclear membrane, boundary wall है ये, nucleoplasm is there, nucleoli and the chromatin material. Here in this diagram, all these structures, they are pretty much clear. This is the nuclear envelope or the nuclear membrane. It is a double membrane bound structure having outer and inner nuclear membranes. Inside it, this fluid filled jelly-like material is known as the nucleoplasm. This darkly stained region of the nucleus is known as the nucleolus or nucleoli, and these thread-like structures, they are known as the chromatin. Beside these, the nuclear envelope also contains nuclear pores. What are nuclear pores? These are the transport proteins, also known as nucleoporin. As we know that nuclear membrane, it is a double membrane covering, and inside it there is a fluid-filled space known as the perinuclear space. Perinuclear space basically इसकी shape को maintain रखता है, nucleus की proper shape देने में help करता है. Membranes की further composition, it is composed of a lipid bilayer and protein molecule. प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर और लिपिड बायलेयर हैं, अपर एंड लोअर लेयर पे लिपिड्स होते हैं, सैंडविच्ड होते हैं इन बिटवीन इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर एनवेलप की, इट इज़ कवर्ड विद द राइबोसोम्स एंड कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवेलप की या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो एक्सपोज्ड है या इन कनेक्शन है विद द साइटोप्लाज्म. देयरफॉर वहाँ पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं एक्सटर्नल जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, एंड जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज़ डायरेक्टली एक्सपोज टू द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस. इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन पे एक तो राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, दूसरा ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो भी कनेक्टेड है विद दैट ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. इसके अलावा न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स? दीज आर द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. दीज आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स and these are basically the transport proteins, and as the name indicates transport protein आगे क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज में हेल्प करेंगे मटेरियल्स की. न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स दे रेगुलेट द न्यूक्लियोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. लार्जर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इसके अलावा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. उनकी एक्सचेंज में जो हेल्प करेंगे वो न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स होंगी. हेयर इन दिस डायग्राम जो आपको जो सामने इसमें हर स्ट्रक्चर विजिबल है. आउटर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर एनवेलप का, वाइल दिस वन इज़ द इनर मेम्ब्रेन, और बीच में इसकी जो स्पेस है फ्लूइड फिल्ड दैट इज़ नोन एज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और ये इसके प्रॉपर शेप देने के काम आती है न्यूक्लियस के. दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स विच आर मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोपोरिन्स. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं ये. इसके अलावा ये जो बीच वाला मटेरियल है आपको सेमी फ्लूइड मटेरियल नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. Along with it, the thread-like structures which are visible in this diagram, these are the chromatin material. Later on, condense होके ये क्या बनाएंगे? Compact होके DNA structures. Ribosomes जो हैं, these are attached to the outer nuclear membrane, and in addition with this,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन भी कनेक्टेड है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। मटेरियल्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं दैट इंक्लूड्स आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स। और इनकी मूवमेंट कैसी है? इट इज़ फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स जो हैं न्यूक्लियस से मूव करते हैं टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, ताकि आगे फर्दर फिर प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके इन विच प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं, दे मूव इनटू द न्यूक्लियस, एंड दीज मॉलिक्यूल्स दे इंक्लूड प्रोटीन्स सच एज डीएनए पॉलीमरेज, carbohydrates, signaling proteins, and lipids. They move into the nucleus. While smaller molecules, they simply enter through the process of diffusion. सेल के न्यूक्लियस के अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन के थ्रू एंटर होते हैं, जबकि लार्जर मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंसेस। इनको स्पेसिफिक सिग्नल प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, रिसेप्टर्स जो हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, तभी उनको अलाउ किया जाता है कि वो सेल के न्यूक्लियस में एंटर हो सकें। Then large molecule they diffuse with the help of nucleoporins into or out of the cell nucleus. और इस पर्पस के लिए लार्जर मॉलिक्यूल्स की एक्सचेंज के लिए क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियर पोर्स हैं जो अलाउ करते हैं इन लार्जर मॉलिक्यूल्स को वो मूव कर सकें इनटू और आउट ऑफ द सेल न्यूक्लियस। Another important part और स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस का, दैट इज़ द न्यूक्लियोप्लाज्म। As we have seen in this diagram, ये पूरा रीजन जो है ये एक सेमी फ्लूइड मटेरियल से बना है और इसको ओवरऑल क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म।